This is the second episode of angina pectoris. In our previous episode, we have discussed about coronary artery disease, coronary artery problem, ischemic heart, myocardium ischemia, and vasospasm and vasoplastic angina. In our new episode, or in this episode, we will discuss about common type of angina or classical angina. Hello and welcome to you all in my channel. Now, so let's start. Here, this is the normal coronary artery. This is the normal coronary artery. There is no problem at all. So blood can flow fluently, and here this is the internal diameter of this coronary artery. There has no changes and no issue in this coronary artery, right? But in case of, if in our blood the amount of high level of bad cholesterol is increased, what I am saying, high level of bad cholesterol is increased, or actually increased. Bad cholesterol level is increased in our blood. Then what happens? So at first we have to know what is the main phenomena about cholesterol. What is cholesterol? I have seen that many students have doubt here that what is the difference between lipoprotein and cholesterol also. So I am talking about one by one. At first I am going to discuss about what is cholesterol. Okay. If we break this word cholesterol and we try to understand what is the meaning of this cholesterol. Chol means bile. What is the meaning of this chol? Bile. Okay. And this sterol. Sterol means solid. So cholesterol means actually cholesterol is solid bile. Okay. Basically the cholesterol is a type of organic molecule. It is basically a type of organic molecule. It's a organic molecule. And if we draw the structure of this cholesterol, it will be like this. This is the actually chemical structure of the cholesterol, and it consists with three basic parts. If we break down this cholesterol according to its structure, we can three basic parts. One is OH group or hydroxyl group. Okay. A, B, C, D, 4 rings. This is steroid skeleton. And the resting part, this portion is a hydrocarbon side chain. Hydrocarbon side chain. So basically it consists with
one hydroxy group and steroid skeleton and plus a hydrocarbon side chain. Okay, so actually it is about its structure. So what is its function in our body? We have seen actually cholesterol means solid bile. So its main function is, number one, main function, it is the essential part of our cell membrane. Why? Coming to this point, first I am writing the point. It is essential part of our cell membrane, helps in फ्लूइडिटी. जो सेल का जो मेम्ब्रेन होता है, वो सेल का मेम्ब्रेन में ये स्टेरॉइड प्रेजेंस होता है, इसलिए उसमें इलास्टिसिटी होता है. अदरवाइज वो ब्रेक हो जाता. तो ये जो स्टेरॉइड जो होता है, ये जो कोलेस्टेरॉल जो होता है, ये जो हमारे जो बॉडी का जो सेल होता है, सेल का जो मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है और ये एसेंशियल है. सेल मेम्ब्रेन में ये कोलेस्टेरॉल का प्रेजेंस रहना एसेंशियल है, बिकॉज इट मेंटेन द फ्लूइडिटी. It's maintain the fluidity and the elasticity in cell membrane. Okay, it helps in fluidity and elasticity in the cell membrane. Otherwise ये जो सेल जो होता है वो उसका जो इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी नहीं होता. इट इज ए प्रिकर्सर. प्रिकर्सर मीन्स without it, without the help of this thing, next step will not proceed. We can't proceed in our next step with the help of this cholesterol. So it helps as precursor. Precursor of production of solid bile. So precursor of bile. It presents with steroid skeleton, right? So precursor of bile, precursor of steroid hormones. Okay, and vitamin D. So these are the basic function. These are the basic function of this cholesterol. So it's a generally cholesterol means bad. No. Actually no. Cholesterol means bad. No. This is the wrong concept. Cholesterol is essential. Cholesterol is very essential in our body. Okay. Actually, without the help of this cholesterol, our fluidity of the cell membrane will hamper. Bile production will hamper. Steroid hormones in our body will not produced. Because in case of bile production, steroid hormone production, vitamin D production or synthesis, it helps as precursor. Without the help of this, we can't go to the next stage, right? In the cell membrane, where it can present? Question is, in the cell membrane, मैंने इतना बार कहा कि सेल मेम्ब्रेन में ये कोलेस्टेरॉल रहता है. आपका क्वेश्चन जो होता है, ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है हमारा, सेल मेम्ब्रेन ऑफ ए सेल, वहां पे कहां पे ये कोलेस्टेरॉल प्रेजेंट होता है? जस्ट सी.
ये मैंने अभी यहाँ पे ड्रॉ किया जो सैंडविच जो मॉडल होता है ऑफ ए सेल मेम्ब्रेन। सैंडविच जो मॉडल होता है मींस we all know about this, our cell membrane is consist with protein, lipid and protein. There is two layer of protein and inside of these two protein layer there has lipid. So upper portion has a protein layer, lower portion has a protein layer, and this protein layer are hydrophilic. So upper and lower portion is hydrophilic, which is composed with protein, right? And the middle portion, this area is composed with lipid, so which is hydrophobic. This middle area is lipid and which is hydrophobic. Hydrophobic. Upper area is protein, lower area is protein. Both are hydrophilic. This is also hydrophilic. And the middle area consists with lipid, which is hydrophobic. Okay. And if we denote this whole structure in a simple cholesterol, which denote like this type, then this cholesterol can present in between these lipids in this portion. Within these lipids, their cholesterol can present in our cell membrane. Okay. So where the cholesterol can present in our cell membrane, in the lipid area, in the lipid portion, there cholesterol can present. Okay, ये जो कोलेस्टेरॉल जो प्रेजेंट रहेगा कहाँ पे रहेगा? अपर पोर्शन प्रोटीन, लोअर पोर्शन प्रोटीन। ये सैंडविच मॉडल है और दोनों प्रोटीन के अंदर क्या है? लिपिड है सेल मेम्ब्रेन में। तो ये जो लिपिड जो पोर्शन है, लिपिड जो हाइड्रोफोबिक जो पोर्शन होता है, उसके अंदर ये कोलेस्ट्रॉल धसे रहता है, उसके अंदर ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स रहता है। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि ये जो कोलेस्ट्रॉल जो है, कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में प्रोड्यूस कैसे होता है और सिंथेसाइज कैसे होता है, राइट? बेसिकली क्या होता है, जब क्या होता है, फूड फ्रॉम एनिमल ओरिजिन जो होता है, एनिमल ओरिजिन से जो फूड आता है, बेसिकली फूड फ्रॉम एनिमल ओरिजिन, एनिमल ओरिजिन से जो फूड होता है, उस फूड से हमारे बॉडी का कुछ सेल है जो खुद कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस कर सकता है, सिंथेसाइज कर सकता है। ओके, ये जो एनिमल ओरिजिन से जो फूड है, ये हमारे बॉडी में जब जाता है, उसके बाद बॉडी में कुछ सेल है जो ऑटोमेटिकली सिंथेसाइज कर सकता है बॉडी में ऑटोमेटिकली कोलेस्ट्रॉल को। ओके, कहां पे होता है? होता है सिंथेसाइज होता है इन आवर लिवर पे। तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम ए जो एंजाइम है, इसके द्वारा बहुत सारे रिएक्शन
के अंदर एट लास्ट जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है दैट इज कोलेस्टेरॉल। क्या बोला? लिवर में कोलेस्टेरॉल प्रोड्यूस होता है और सिंथेसाइज होता है। ओके, एसिटाइल कोए से बहुत रिएक्शन होने के बाद एट लास्ट कोलेस्टेरॉल एज ए प्रोडक्ट सिंथेसाइज्ड होता है। कहां पे होता है? इन आवर लिवर। क्लियर? ये जो प्रोडक्शन जो है, ये जो सिंथेसिस ऑफ जो कोलेस्टेरॉल है, ये होता है नेगेटिव फीडबैक के द्वारा। नेगेटिव फीडबैक। What is the requirement of this negative feedback? Because बहुत ज्यादा कोलेस्टेरॉल ना प्रोड्यूस हो जाए, क्योंकि बॉडी में उतना ही कोलेस्टेरॉल का जरूरत होता है जो बॉडी में चाहिए, जो सेल मेम्ब्रेन में चाहिए और बायोसिंथेसिस में चाहिए, और जितने इसका कोलेस्ट्रॉल का जितने सारे फंक्शन है बॉडी में, उस बॉडी में करने के लिए जितना चाहिए उतना ही कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस होना चाहिए। तो अगर ज्यादा ना हो जाए, इसलिए ये नेगेटिव फीडबैक के थ्रू काम करता है। जब इसको लगेगा कि और जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये नेगेटिव फीडबैक के द्वारा ये कोलेस्टेरॉल सिंथेसिस बंद कर देगा। कोलेस्टेरॉल ज्यादा नहीं प्रोड्यूस होगा। Excess amount of cholesterol will not produce in your body, so it can control by negative feedback. Okay, अब क्या होता है? ये कोलेस्ट्रॉल तो प्रोड्यूस हो गया, What is the problem? ये ब्लड में लार्ज लिपिड पार्टिकल के साथ बाइंड करता है। ये जो कोलेस्ट्रॉल जो प्रोड्यूस होता है, ये लार्ज लिपिड पार्टिकल के साथ बॉडी में बाइंड करता है। ये लार्ज लिपिड पार्टिकल क्या है? लिपोप्रोटीन नाम से इसको बोल सकते हैं। सो व्हाट इज दिस? दिस इज लिपोप्रोटीन। Lipoprotein. So cholesterol can bind with lipoprotein. ये बात को ध्यान से समझना। कोलेस्टेरॉल कहां पे प्रोड्यूस हुआ? लिवर से। लिवर से कोलेस्टेरॉल प्रोड्यूस होने के बाद ये बाइंड कहां करता है? लिपोप्रोटीन के साथ बाइंड करता है। इसलिए लिपोप्रोटीन के अंदर कोलेस्टेरॉल रहता है। This is the main difference between lipoprotein and cholesterol. लिपोप्रोटीन के अंदर कोलेस्टेरॉल एज ए प्रोडक्ट रहता है। समझ रहे हो बात को? लिपोप्रोटीन कोलेस्टेरॉल नहीं है, लिपोप्रोटीन के अंदर कोलेस्टेरॉल रहता है। तो ये लिपोप्रोटीन के साथ बाइंड करता है इन आवर ब्लड प्लाज्मा के अंदर। ओके, ये जो लिपोप्रोटीन है, ये देखने में कैसा है? लिपोप्रोटीन मींस ऑफ कोर्स लिपिड प्लस प्रोटीन, राइट? तो ये लिपोप्रोटीन देखने में कैसा है? इसको अब मैं एक डायग्राम बनाता हूं। यहां this is the diagrammatic structure of lipoprotein, which consists with lipid. Which kind of lipid? Triglyceride, phospholipid, triglyceride, phospholipid. So what is the name of this lipid? Triglyceride, phospholipid. Triglyceride, phospholipid.
फॉस्फोलिपिड. ओके, अब क्या हुआ, ये तो हो गया लिपिड. व्हाट इज द प्रोटीन? In this portion, in this several portion, there is also some proteins or protein molecules. ऐसे बहुत सारे जगह होता है जहां पे ट्राइग्लिसराइड फॉस्फोलिपिड्स के अंदर प्रोटीन रहता है. ये प्रोटीन का एक भी एक नाम है. इस प्रोटीन को क्या कहा जाता है? This protein is called apoprotein. What is called? What is the name of the protein of this lipoprotein? Lipoprotein protein is called apoprotein. Okay. So, what is the main lipid portion of this lipoprotein? That is triglyceride phospholipid. This is this type of structure, and there has also some proteins. These proteins are called apoproteins. ये तो हो गया लिपोप्रोटीन के बाद. अब जब कोलेस्टेरॉल ये लिपोप्रोटीन के साथ बाइंड करता है तो कोलेस्टेरॉल इसके अंदर घुस जाता है. समझ रहे हो? So this is the structure of a lipoprotein. लिपोप्रोटीन में तो लिपोप्रोटीन में क्या क्या रहता है? लिपोप्रोटीन में लिपिड जो रहता है वो है ट्राइग्लिसराइड फॉस्फोलिपिड. बात खत्म. जो प्रोटीन जो रहता है उसको हम कहते हैं एपोप्रोटीन. बात खत्म. और इसके अंदर जब ये कोलेस्टेरॉल के साथ बाइंड करता है तो कोलेस्टेरॉल इसके अंदर घुस जाता है. तो ये जो सेंटर जो है, सेंटर के इसका अंदर कोलेस्टेरॉल घुस जाता है, कोलेस्टेरॉल रह जाता है. सो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए लिपोप्रोटीन. तो ये तो हो गया लिपोप्रोटीन के बाद. अब now we can classify this lipoprotein according to their density. What I am saying, ये लिपोप्रोटीन को हम क्लासिफाई कर सकता है according to their density. अब now the question is density of which thing? कौन सा चीज का डेंसिटी हम मेजर करेंगे? यहाँ पे तो बहुत सारी चीज है. फॉस्फोलिपिड है, एपोप्रोटीन है, ये जो कोलेस्टेरॉल है. कौन सा चीज का डेंसिटी है? डेंसिटी के ऊपर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे और डिवीजन करेंगे. क्वेश्चन का आंसर जो है वो है कि यहाँ पे हम लोग जो डेंसिटी का बात कर रहे हैं वो है प्रोटीन का डेंसिटी. जो एपोप्रोटीन है उस प्रोटीन का डेंसिटी. अकॉर्डिंग टू द density of protein, according to the density of protein, we can classify this lipoprotein in basically in 4 types. Now अब ये क्वेश्चन आता है कि डेंसिटी के वाइज जो हम क्लासिफाई कर रहे हैं तो why on the basis of protein, why not lipid? यहाँ पे तो लिपिड है, प्रोटीन है. why not lipid? Because lipid are lighter than protein. Because lipid are lighter than protein. ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे. Can classify lipoprotein can classify according to the density of protein, right? Density of protein. Now the question is why on the basis of protein, why not lipid? Because lipid are lighter than protein. लिपिड जो है, लिपिड आर
lighter than protein। यहाँ पे जो लिपिड जो प्रेजेंट होता है उसका जो वेट है उसको हम कैलकुलेट करेंगे तो वो प्रोटीन से बहुत कम होता है। अब एक चीज सोचो, जस्ट नोटिस दिस थिंग, इफ लिपिड अमाउंट बिकम हाई, अगर इसमें लिपिड को हम बढ़ा देता है तो ये इसका जो डायमेंशन जो है, शेप जो है, शेप बड़ा हो जाएगा। सो इफ लिपिड इंक्रीज, शेप जो है, शेप बड़ा हो जाएगा, शेप बिकम लार्ज, राइट। तो अगर तो शेप बड़ा हो गया, राइट। अगर इसका शेप बड़ा हो जाता है, लिपिड अगर ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है, लिपिड अगर ज्यादा है तो प्रोटीन क्या हुआ, प्रोटीन कम हुआ या ज्यादा हुआ? प्रोटीन ऑब्वियसली कम होगा, तो प्रोटीन विल बी लेस। दिस इज द पॉइंट। मैं आगे बार बोल रहा हूं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस पॉइंट को। अगर इस लिपोप्रोटीन में हम तो ये जान गए लिपिड आर लाइटर इन वेट देन प्रोटीन, ओके। सो अगर यहाँ पे अगर हम लिपिड को बढ़ाते जाते हैं तो इसका शेप जो है वो बड़ा हो जाएगा। अगर लिपिड ज्यादा है इसका मतलब क्या कम हुआ? लिपिड और प्रोटीन ये दोनों ही तो चीज है, तो इसका अगर लिपिड ज्यादा होता है तो प्रोटीन ऑब्वियसली बात है कि प्रोटीन कम हो जाएगा। अगर प्रोटीन कम होता है तो उसका वेट भी कम होता जाएगा, मतलब डेंसिटी, ये जो बात कर रहे हैं हम, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं डेंसिटी ऑफ प्रोटीन का, ये डेंसिटी ऑफ प्रोटीन भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा, कम हो जाएगा। सो डेंसिटी will decrease, density will decrease, this is the simple thing। लिपिड हम बढ़ाते जाएंगे तो इसका शेप बड़ा होता जाएगा। अब देखो लिपिड का उतना वेट तो है नहीं प्रोटीन के रेस्पेक्ट में, तो अगर लिपिड बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि प्रोटीन जो है प्रोटीन कम हो जाएगा। अगर प्रोटीन कम हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं डेंसिटी ऑफ प्रोटीन का, तो डेंसिटी ऑफ प्रोटीन भी घट जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? जो बड़ा लिपोप्रोटीन होगा उसमें लिपिड ज्यादा रहेगा या प्रोटीन ज्यादा रहेगा? जो स्ट्रक्चर में बड़ा होगा जो लिपोप्रोटीन, उसमें लिपिड ज्यादा होगा, क्योंकि लिपिड ज्यादा होगा तो शेप लार्ज होगा, तो लिपिड ज्यादा होगा। तो इसका डेंसिटी अगर इसका डेंसिटी देखें तो डेंसिटी क्या होगा? डेंसिटी मींस प्रोटीन का डेंसिटी, लिपिड ज्यादा है मतलब प्रोटीन कम हुआ। अगर प्रोटीन कम है तो डेंसिटी भी कम होगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो लिपोप्रोटीन जितना बड़ा होगा उसका लिपिड अमाउंट उतना ही ज्यादा होगा और उसका प्रोटीन का जो डेंसिटी है उतना कम होगा। और जो छोटा जो लिपोप्रोटीन होगा, छोटा लिपोप्रोटीन मतलब उसमें लिपिड अमाउंट ज्यादा है कि कम है? कम है, इसलिए छोटा है। तो कम है लिपिड, तो ज्यादा क्या है? ज्यादा की ज्यादा प्रोटीन है। अब प्रोटीन अगर ज्यादा है तो प्रोटीन का डेंसिटी ज्यादा हुआ तो उसका डेंसिटी ऑफ प्रोटीन हाई होगा, इसका डेंसिटी हाई होगा। जो छोटा होगा, जो छोटा लिपोप्रोटीन होगा उसका डेंसिटी हाई होगा, जो बड़ा लिपोप्रोटीन होगा उसका डेंसिटी कम होगा। ये बात अगर समझ में आ जाएगा तो इसका जो क्लासिफिकेशन जो है वो क्लासिफिकेशन समझने में बहुत आसानी होगा।